محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ محترمہ کے کویتا صاحبہ کی مسلسل دوسری مرتبہ متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی ایم ایل سی کے طور پر حلف لے کر ٹیارس پارٹی و چیف منسٹر کے سیاق مقامی عوامی نمائندوں کو کے کویتا صاحبہ نے کیا اظہار تشکر۔ ایم ایل سیز کے طور پر کے کویتا و دامودر ریڈی حلف لینے پر ریاستی وزیر امارت و شورا پیملا پرشانت ریڈی نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی ریاستی وزیر بلدیات و آئی ٹی کے ٹی رامر راؤ سے ملاقات، ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی اجرائی کے لیے کی نمائندگی۔ ریاستی وومنس کمیشن چیئرپرسن کے طور پر سنیتا لکشما ریڈی و ممبر کے طور پر سدھم لکشمی کے ساتھ دیگر 6 ممبران منتخب ہو کر 1 سال مکمل ہونے کی بنا پر حیدرآباد کی ریاستی دفتر میں جشن کا انعقاد۔ قومی شاہراہوں سے منسلک خانگی کاروباری ادارے و کمپلیکس کے احاطے میں مرحلے وار پودے لگانے کے لیے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ کووڈ پر قابو پانے تجارتی و سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی ضروری۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 428 مثبت کیس، عوامی لاپرواہی لمحہ فکر۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے طور پر کے کویتا صاحبہ عہدے کا حلف لینے پر ریاستی وزراء و دیگر مشہور شخصیات نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ ضلع نظام آباد رکن قانون ساز کونسل کی حیثیت سے کے کویتا نے حلف لینے پر ریاستی وزیر امارت و شورا پیملا پرشانت ریڈی، ظہیر آباد رکن پارلیمنٹ بی بی پاٹل، زیڈ پی ٹی سی چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجوڈی گوردھن، اربن رکن اسمبلی نظام آباد بیگالا گنیش گپتا، رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر، وی آئی پی گوردھن، جکل رکن اسمبلی ہنومن شنڈے، زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ایم ایل ایز میاں نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، ڈائریکٹر اختر احمد خان، نوجوان قائد سندیپ راؤ، ستیم راؤ و دیگر موجود تھے۔ بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی کے ٹی آر سے ملاقات، ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی اجرائی کے لیے نمائندگی۔ رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر نے حیدرآباد میں رہائش پذیر ریاستی وزیر بلدیات و آئی ٹی کے ٹی رامر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے بودھن مجلس بلدیہ میں جاری ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا، اور مزید ترقیاتی کام جیسے این آر ای جی ایس اسکیم کے تحت دیگر ترقیاتی کاموں کے علاوہ حلقے میں نئے برج کی تعمیر و عبادت گاہوں کے پاس سہولیات، اور بودھن شہر میں چائلڈ ہاسپٹل، اربن ہیلتھ سینٹر کے علاوہ دیگر سہولیات کی طرف توجہ دلواتے ہوئے فنڈز کی اجرائی کے لیے نمائندگی کرنے پر ریاستی وزیر کے ٹی آر نے مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے تمام ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ سے جاری کرنے کا تیقن دیا۔ ترقی کا دوسرا نام آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی، کسانوں کو دھوکہ دے کر جیتنے والے ڈی آروین کو کوئی حق نہیں کہ وہ پی یو سی کمیٹی چیئرمین و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرے۔ ایم پی اروند کے ہر چیلنج کا جواب دینے کے لیے ٹی آر ایس تیار۔ ٹی آر ایس سینئر قائد سمیر احمد، عثمان اعظمی و ٹی آر ایس کونسلر محمد فیاض نے صحافتی بیان میں بتایا کہ نظام آباد ایم پی اروند نے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ پہلے کسانوں کو دیے گئے وعدوں کو پورا کرے، اس کے بجائے وہ ٹی آر ایس کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ترقی کا دوسرا نام آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی ہے۔ ان کی نمائندگی پر کئی کام انجام دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف اگر نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے تو ٹی آر ایس قائدین اس کا منہ توڑ جواب دینے کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت خود جدوجہد کر کے پریس میں آنے سے، پریس کا جو کوریج سے
दिल्ली हुकूमत को हिला दी, आज तेलंगाना आया वो तो इसमें प्रेस वालों का भी अहम रोल है। वो देखते हुए जीवन रेड्डी साहब हमेशा प्रेस वालों की इज्जत करते हैं। जिन्होंने गैर जरूरी अरविंद जो अपने हामियों के साथ एमएलए साहब के ऊपर जो गैर जरूरी रिमार्क करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अरविंद साहब, अगर आपको अगर कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करना है तो डेवलपमेंट के बारे में हम भी बात करेंगे, आप भी बात करो, मगर गैर जरूरी हमारे अवामी नुमाइंदे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जीवन रेड्डी साहब को तू अब नहीं आता, जब नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। हम आज चैलेंज कर रहे हैं आपको, आप भी नेक्स्ट इलेक्शन में ठहरो, देखेंगे किसकी जमानत जब्त होती, तुम्हारी या हमारी, क्योंकि हम अवाम के साथ हैं, अवाम के दरमियान है। जीवन रेड्डी का नाम ही डेवलपमेंट है। बस जय तेलंगाना। अगर इससे ज्यादा अगर कुछ आगे बोलते हैं तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने नहीं देंगे। ये टीआरएस के कायदीन, सिपाही, टीआरएस के मेंबर्स पूरे मिलकर कह रहे हैं, ये तो हमारे एमएलए की बड़ापन है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सबका बराबर रहना, सबके साथ रहना बोल के वो कर रहे हैं। क्योंकि एमएलए साहब ये ऐसा वाहिद लीडर है जो आर्मूर की तरक्की चाहता है, आर्मूर की डेवलपमेंट चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यही है जीवन रेड्डी साहब का नारा। तेलंगाना आर्मूर की आवाम सदा खुश रहे। एमएलए साहब 4 दिन पहले क्वारंटाइन हुआ, एमएलए नो मुझे पीछिनो, अरे एमएलए मुझे पीछो। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में एमएलसी के कविता की हल्फ बर्दारी तकरीब। जिले के कायदीन हैदराबाद पहुंचकर हल्फ बर्दारी के बाद गुलदस्ता पेश करते हुए दी मुबारकबाद। साबिक़ा रुकन पार्लिमान व एमएलसी के कविता ने आज अपने ओहदे का हल्फ 12:40 पर कानून साज काउंसिल में चेयरमैन अमीन जाफरी ने हल्फ दिलाया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इन पर एतमाद करते हुए दोबारा इन्हें एमएलसी बनाया। इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए वो पहले भी तैयार थी और आने वाले दिनों में भी अपने आप को वक्फ कर देगी। इन्होंने हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अराकीन असम्बली व रियासती वज़रा से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट डेडको चेयरमैन एस अलीम, स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, बी चंद्रम वाइस चेयरमैन, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, एस अनिल राव टीआरएस लीडर वो दीगर ने इनसे मुलाकात करते हुए दूसरी मरतबा एमएलसी बनने पर मुबारकबाद पेश की। कौमी शाहराहों से मुंसलिक खानगी कारोबारी इदारे व कॉम्प्लेक्स के अहाते में मरहले वार पौधे लगाने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए डिचपली मंडल, धर्मराम, बर्दीपुर, मुस्तखर के अलावा निजामाबाद, हैदराबाद के अहम तरीन शाहरों पर हरीता हरम के तहत लगाए गए पौधों का जायजा लेने के साथ साथ इसी रास्ते पर वाक़ई कल्याण मंडप, पेट्रोल बंक, माल शॉप्स व दीगर दुकानात पर मौजूद पौधों का मुशाहिदा करते हुए खाली मुकामात पर पौधे लगाने के लिए अहदेदारों को ताकीद की। बातज़ा कलेक्टर ने दीगर तिजारत कुनिनगान को पौधों की अहमियत के मुतालिक शोरबेदारी अमल में लाई और इसी तरह से आने वाले 4 महीनों में बड़े पैमाने पर शजरकारी अंजाम देते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल बंक के पास गाड़ियों के ठहरने की जगह को छोड़कर दीगर मुकामात पर तकरीबन 50 पौधे लगाने की अहदेदारों को हिदायत दी। मोहतरमा के कविता साहिबा की मुसलसल दूसरी मरतबा मुत्तहदा जिले निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से हल्फ लेने पर रियासती महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी ने दी मुबारकबाद। फख्र तेलंगाना हरदिल अजीज हरकियाती कायद व बानी सदर तेलंगाना जागृति मोहतरमा के कविता की मुसलसल दूसरी मरतबा मुत्तहदा जिले निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से हल्फ लेने के मौके पर रियासती महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वो दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे पर फायज होकर ताहयात तक अवाम की खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। एमएलसी के तौर पर हल्फ लेने वाले के कविता साहिबा व दामोदर रेड्डी को रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए दी मुबारकबाद। कानून साज काउंसिल के अरकान के हैसियत से श्रीमती कलवकुंटला कविता साहिबा व कुचकुला दामोदर रेड्डी ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अमीरुल हसन जाफरी के हाथों तेलंगाना कानून साज चैम्बर में ओहदे का हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए एमएलसी के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने वाले के कविता साहिबा दामोदर रेड्डी को मंडल के रूल्स बुक, ID कार्ड हवाले करने के साथ साथ फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला महबूब, वजीर सत्यवती राठौड़ व दीगर ने शिरकत की।
जराइम व गैर समाजी सरगर्मियों पर रोकथाम के लिए एसीपी सीआई के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीजन के अहाते में जराइम व गैर समाजी सरगर्मियों पर रोकथाम करने के लिए एसीपी व सीआई के साथ माहाना वारी इजलास मुनक्किद करते हुए पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में अब तक वे जराइम का जायजा लेते हुए ज़ेर इल्तिवा तमाम क्रिमिनल मुकदमात की एक्सवी करने और जराइम की तादाद में कमी करने के लिए कोशिश करें और इसी तरह से किसी भी तरह के छोटे से छोटे जराइम न होने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन के हुदूद पर कड़ी निगाह रखते हुए पुलिस मुलाजमीन के औकात कार में पेट्रोलिंग अमल में लाते हुए खुले मुकामात पर शराब नोशी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की ताकीद करते हुए कहा कि सड़क हादसे की रोकथाम के लिए ऑटो व जीप में पैसेंजर की तादाद को कम करने के लिए इक़दामात करते हुए CCTNS क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में पुलिस स्टेशन में FIR और केसों की तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी तमाम तरीन तफसीलात फौरी तौर पर दर्ज करने के लिए कहते हुए तातुल के शिकार केसेस की तहक़ीक़ात फिलफुर मुकम्मल करके जुराइम के फीसद में कमी लाने की ताकीद की। तलबा व नौजवान सख्त मेहनत के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए हर शोबे में महारत हासिल करे। जिले कामरेड्डी बिरकुर मंडल में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तक़रीब से ZPTC ड्रोनावली सतीश का खिताब। जिले कामरेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा TRS योजना सेक्शन मंडल सदर शशिकांत अकुला साई कुमार के ज़ेरे निगरानी में नौजवानों और तलबा के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इख्तिताम अमल में आया। ज़िमन में एक इख्तितामी तक़रीब का इनेकाद किया गया जिसमें फ़ाहते टीम और रनर टीम को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर ZPTC मेंबर ड्रोनावली सतीश मुकामी TRS कायदीन मौजूद। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए ZPTC मेंबर D सतीश ने कहा कि आज के ये बच्चे वो नौजवान कल मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और इलाका तेलंगाना के नौजवानों में हर तरह की सलाहियतें मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ ना इंसाफियों का शिकार है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए और हर शोबे में महारत हासिल करते हुए अपने इलाके और इलाके के अवाम की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी ना रखे। इसीलिए जरूरी है कि तलबा तालीमी मैदान हो या खेल का मैदान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुंतखबा मैदान में महारत हासिल कर ले। इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क अक़वाम का दारोमदार इस मुल्क के तलबा व नौजवानों पर होता है और इस तरह के तलबा व नौजवान मुल्क व कौम को हासिल होंगे, मुल्क और कौम इस जाने भी गामजान होगी। इन्होंने तलबा व नौजवानों को तलखीन की कि वो तालीम के साथ अपने पसंदीदा खेलों और मुकाबलों में दिलचस्पी लेने का इजहार किया। క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ నిర్వహించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా గేమ్ అంటే గెలుపోటములు సహజం। ఈరోజు లాస్ట్ ఫైనల్స్లో బీర్పూర్ వర్సెస్ వర్ని నడిచింది। రెండు టీంలు కూడా బాగా ఆడినాయి। దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వచ్చే సంవత్సరం నుండి నాకు చేతనైనంత వరకు బీర్పూర్ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో జరిగే గేమ్స్ కొరకు ఇక్కడ యువకులందరితో సంప్రదించి ప్రతి సంవత్సరం నా తరఫున 20,000 రూపాయలు ద్రోణవల్లి చాలా, ఎందుకంటే గేమ్స్ అనేది క్రీడలు అనేది మానసిక ఉల్లాసాన్ని కూడా పనిచేస్తాయి కాబట్టి మీలో ఉన్న స్ఫూర్తిని కూడా తెలియజేసినాయి। ప్రతి సంవత్సరం 25,000 ద్రోణవల్లి సీతారామయ్య గారి పేరు మీద एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 8 CMRF चेक्स की बालकोंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। मंडल के मुकाम पर पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 18 CMRF चेक्स को पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दामात को रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें से CM रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर खानगी दवाखाने में इलाज व मुआलजा हासिल करने वाले अफराद की जानिब से अखराजात की अदायगी न करने वालों को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनकी इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हो तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त देने के बिना पर इन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से रकमी इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज व मुआलजे में सहूलत हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुरनगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, TRS पार्टी से वाबस्ता पार्टी कायदीन लिंगा गौड, हल्के सामान्वय कमेटी मेंबर गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, मौजे के सदर सागर यादव, MPTC मेम्बरान EP नारायणा, वाई रामराज गौड, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वाहब, C श्रीनिवास गौड, J मलेश, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली पेदा बाल राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। कोरोना और ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कमरपल्ली मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर मानसा का खिताब। कमरपल्ली मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर मानसा ने KC से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीन ले। ऐसे अफराद जो वैक्सीन ले चुके हो वो भी कोविड एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने की बात बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक किसी भी किस्म की लापरवाही न की जाए। अगर किसी किस्म का बुखार खैर दस्त हो तो फौरी तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होते हुए तशखीस करवाए ताकि बेहतर इलाज हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई अमराज बिलखुसूस नए वेरिएंट और कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए शुरू करदा टीका अंदाजी से हर एक फर्द इस्तिफादा हासिल करते हुए खुद और अपने अरकान खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का इजहार किया। మన మండలంలో మన సంక్రాంతి పండుగకి జరుపుకోవడం వల్ల ఊర్లలో నుండి మన ఇంటికి చుట్టాలు రావడం, ఇక్కడ నుండి మీరు వేరే ఊర్లకు వెళ్ళడం వల్ల కొన్ని నిన్న ఒక 10 నుంచి 15 మందికి కరోనా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది PSCలో. అందులో 6గురికి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. వీళ్ళందరికీ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఇచ్చాము. వీళ్ళందరూ హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. అలానే వీళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ని కూడా ట్రేస్ చేసి వాళ్ళకు కూడా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు అయితే ఇప్పటివరకు మళ్ళీ పాజిటివ్ రాలేదు. ఇట్లనే మీకు ఎవరికైనా లక్షణాలు ఉండి బాధపడుతున్న వాళ్ళైతే జ్వరము, దగ్గు, జలుబు, మోషన్స్, వామిటింగ్స్ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే వచ్చి మా PSCలో కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకొని మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ముందుగానే కోవిడ్ బారిన పడకుండా రక్షించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेन नहीं होगी। साउथ सेंट्रल रेलवेज ने कोरोना वबा के पेश नज़र अजमेर के लिए जारिया साल खुसूसी ट्रेन का एहतमाम नहीं किया है। रेलवे के ज़राए के मुताबिक हर साल उर्से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनों का एहतमाम किया जाता रहा, लेकिन इस मरतबा राजस्थान हुकूमत ने मुल्क भर से खुसूसी ट्रेनों की इजाज़त नहीं दी है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद ता अजमेर खुसूसी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। चार मीनार को आलूदगी से पाक रखने इक़दाम, दाग धब्बों की केमिकल से सफाई, महकमे आसार खदीमा की कार्रवाई। हैदराबाद के 400 साल तारीखी चार मीनार की सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करने और इसको आलूदगी से पाक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के
हेरिटेज इमारतों में चार मीनार का शुमार होता है। चार मीनार शहर हैदराबाद की अजीम व तारीखी शनाख्त है, जिसका नजारा करने के लिए बड़े पैमाने पर सियाह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरूनी ममालिक से पहुँचते हैं। सदियों से इस इमारत की हिफाजत की जा रही है। हुकूमत और महकमे आसार कदीमा की जानिब से तारीखी चार मीनार की अजमत को बरकरार रखने के लिए वक्फे से इसकी आगपाशी की जा रही है। गाड़ियों से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से चार मीनार आलूदगी का शिकार हो रहा है। इससे चार मीनार को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही इसकी असली खूबसूरती बहाली करने के लिए आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अहदेदारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। चार मीनार पर पड़ने वाले सियाह धब्बों को हटाने कीमियाई अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। टगमल चार मीनार की केमिकल अशिया से सफाई की जा रही। SHO निजामाबाद विजय बाबू ने जायजा ले लिया। वन टाउन SHO इंजीनियरों का तबादला करते हुए इनकी जगह 2009 बैच के सर्कल इंस्पेक्टर विजय बाबू को तकर्रुर किया गया। विजय बाबू क़ब्ल हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने इन्हें हैदराबाद से निजामाबाद तबादला किए जाने पर विजय बाबू ने अपना जायजा हासिल कर लिया। इसके अलावा इंस्पेक्टर सत्यनारायण का भी तबादला करते हुए 2009 के कृष्णा को हैदराबाद से निजामाबाद तबादला करने पर ये भी अपना जायजा हासिल कर लिए। इनके अलावा एरगटला SI का भी तबादला करते हुए इनकी जगह राजू को तकर्रुर करने पर इन्होंने भी अपना जायजा हासिल कर लिया। इसी तरह मोरताड़ SI की हैसियत से राजू का तबादला करने पर इन्होंने भी अपना जायजा हासिल कर लिया। बालकोंडा SI चंद्रा मोहन की हैसियत से तकर्रुर करने पर ये भी अपना जायजा हासिल कर लिया। रियासत में 16 जनवरी तक 4 फरवरी अदालतें ऑनलाइन काम करेंगी। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत की तमाम अदालतों को 18 जनवरी से 4 फरवरी तक वर्चुअल तरीके से चलाने का फैसला किया है। रजिस्ट्रार जनरल के अहकामात में कहा गया कि तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए फैसला किया गया कि तमाम अदालतों में ऑनलाइन खिदमत अंजाम दी जाएगी और 4 फरवरी तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि अदालतों को कोरोना से पाक बनाने और अदालतों को पहुंचने वालों को कोरोना से महफूज रखने जारी करदा रहनुमाना खतूत पर फौरी अमल किया जाएगा। रियासती व मरकजी हुकूमत के तमाम रहनुमाना खतूत पर अमल की अदालत के तमाम शोबों के जिम्मेदारों को हिदायत रजिस्ट्रार जनरल की जानिब जारी करदा इस इलामे में अमल आवरी की हिदायत दी गई है। कोविड पर काबू पाने तिजारती व सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी जरूरी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 428 मुस्बित केस, अवामी लापरवाही लम्हा फिक्र। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में कोरोना की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और 24 घंटों के दौरान निजामाबाद में 118 मुस्बित केस जाहिर हो रहे। माह जनवरी में दिन ब दिन केसों में इजाफा होता जा रहा है। रियासती सतह पर मुस्बित केसों में इजाफा और नए वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी के साथ फैलता हुआ देखते हुए हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और इसके अलावा दीगर कारोबार पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से मुत्तहदा जिले में सियासी सरगर्मियां, तकारीबात, दही सतह पर यात्रा को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है और जिले की सरहद पर महाराष्ट्र वाक़ होने की वजह से भी महाराष्ट्र से हर रोज सैकड़ों अफराद कारोबार और तिजारती अगराज के लिए आमद का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा जिले में शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मामलात को हमेशा की तरह अंजाम दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से हर रोज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर सतह पर मुआयना भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के मामलात में कोई कमी वाकई नहीं हो रही है, क्योंकि अवाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना मुनासिब नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अलावा तकारीबात, सियासी सरगर्मियों पर सख्ती के साथ पाबंदियां आयद करने की सूरत में वबा पर कंट्रोल किया जा सकता है, वरना और भी केसों में इजाफे के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। ओमिक्रॉन ज्यादा मोहलिक नहीं, हुनूस सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस। मुआयने और रिपोर्ट्स के इंतजार के बजाय अलामात की बुनियाद पर इलाज पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत। माहिरीन की राय। ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बल्कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना मोहलिक साबित नहीं हुआ है, लेकिन अब तक फैलने वाली कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला साबित हो चुका है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों में 92.3% मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतासरीन के जीनोम की तरतीब की जाँच नहीं की जा रही है। रियासत तेलंगाना में न सिर्फ सरकारी दवाखानों बल्कि खानगी डॉक्टर्स की जानिब से भी
अब कहा जा रहा है कि अगर किसी में अलामात पाई जा रही हैं तो इन्हें ऐसी सूरत में मुआयने के बजाय इलाज पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा जिस रफ्तार से समाजी फैलाव इख्तियार कर चुकी है, ऐसे में मुआयनों और रिपोर्ट्स का इंतजार करने के बजाय अलामात की बुनियाद पर इलाज करवाया जाने लगा है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन में खून के गाढ़ा होने की शिकायत मौसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अलामात के एतबार से इलाज के जरिए कोरोना वायरस से निजात हासिल की जा सकती है। माहिरीन की जानिब से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तेलंगाना में कोरोना वायरस के जो मरीज मौजूद हैं, इनमें 92% से ज्यादा ओमिक्रॉन नामी नए किस्म का शिकार है और बतदरीज डेल्टा के मुतासरीन की तादाद में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। जराये के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से मुआयनों के दौरान मुस्बित पाए जाने वाले मरीजों में से जिले वारी असास पर किए जाने वाले जीनोम की जांच में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता माह के दौरान महकमे सेहत की जानिब से एयरपोर्ट पर मुतासिर पाए जाने वालों के जीनोम की जांच की जा रही थी, लेकिन बतदरीज ओमिक्रॉन के मरीजों में होने वाले इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत ने ऐलान कर दिया था कि ओमिक्रॉन का समाजी फैलाव शुरू हो चुका है, इसीलिए अब जीनोम की तरतीब की जाँच नहीं की जाएगी, बल्कि कोरोना वायरस के शिकार तमाम मरीजों को वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार तस्वुर जाएगा। और गुज़िश्ता दिनों इस बात का इंकशाफ हुआ था कि रियासत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मुतासरीन में 82% मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार है। और आज एक और रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना में मौजूद जुमला मरीजों में 92.3% मरीज ओमिक्रॉन का शिकार है। पासपोर्ट की फ्राहमी में 31 जनवरी तक 50% कमी का फैसला, अवामी मालूमाती मरकज के औकात कार में भी तख्फीफ। तेलंगाना में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में 31 जनवरी तक यौमिया फ्राहम किए जाने वाले स्लॉट में 50% की कमी करने का फैसला किया गया है। और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की जानिब से जारी किए गए अहकामात में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट के उसूल तक अपने टिकट न करवाए और न ही सफर की मनसूबाबंदी करे, क्योंकि हर सफर को पासपोर्ट की जाए के लिए इमरजेंसी तस्वुर नहीं किया जा सकता। मिस्टर दासरी बालैया IRS रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि सिर्फ तिब्बी इमरजेंसी को ही इमरजेंसी तस्वुर किया जाएगा और नागुज़र सफर को ही इमरजेंसी स्लॉट फ्राहम किए जाएंगे। इन्होंने सहाफती इलामी में जारी करते हुए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद नजद प्रशांत टाकीज में मौजूद अवामी मालूमाती मरकज के औकात कार, जो कि 9:30 सुबह था 4 बजे शाम हुआ करती थी, इसमें भी तख्फीफ का फैसला किया गया है और अब ये मरकज सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक खिदमत अंजाम देगा। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याब अफराद के लिए खुशखबरी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन, ओहदेदारों और वजीफा याब अफराद के ज़ेर-ए-इल्तिवा तीनों DA की मंजूरी को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। बवसूख ज़राए के मुताबिक काबीना की मंजूरी के मुताबिक तीनों DA मिलाकर 10.1% की अदायगी की मंजूरी दी गई है। महकमे फाइनेंस को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की हिदायत दे दी। DA की अदायगी के जरिए हुकूमत पर 260 करोड़ रुपए का ज़ायद बोझ आयद होगा। बढ़ाए गए DA फरवरी की तनख्वाह और वजीफे के साथ अदा किए जाने का इम्कान है। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से DA की अदायगी में ताख़िर हो रही थी। जारिया माशी साल सूरत हाल में कुछ बेहतरी के बाद 3 DA एक साथ दिए जाने के फैसले को काबीना ने मंजूरी दे दी है। रियासती वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन के तौर पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी वो मेम्बरान मुंतखब होकर 1 साल मुकम्मल होने की बिना पर कमेटी के मेम्बरान ने हैदराबाद के रियासती दफ्तर में जश्न का इनेकाद अमल में लाया। स्टेट वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन के तौर पर श्रीमती सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, वो मेम्बरान के तौर पर सुदम लक्ष्मी, शबीना अफरोज, श्रीमती ईश्वरी बाई, के उमा देवी, जी पद्मा, देवती राव मुंतखब होकर 1 साल मुकम्मल होने के बिना पर कमेटी के मेम्बरान ने शहर हैदराबाद में वाक़े रियासती दफ्तर में जश्न का इनेकाद अमल में लाते हुए की रस्म जाई अमल में लाकर खुशी का इजहार किया। भीमगल मंडल एसआई श्रावण कुमार ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा सुमन गली चौरास्ते पर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई। भीमगल एसआई श्रावण कुमार ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा सापहर
सुमन गली चौरास्ता पर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनखी अमल में लाते हुए कहा कि मोटरसाइकिल मालिकिन गाड़ी पर सवार होने से पहले सर पर हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस व दीगर गाड़ी से वाबस्ता दस्तावेजात को साथ रखने की ताकीद की और कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने आयद करते हुए गाड़ियों को सीज करने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि कोविड-19 की नई शक्ल वेरिएंट ओमिक्रॉन के कहर के पेश नजर हर एक फर्द कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर अमलावरी करके खुद और अपने अरकान खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मोहतरमा के कविता साहिबा की मुसलसल दूसरी मरतबा मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी MLC के तौर पर हल्फ लेकर टीआरएस पार्टी व चीफ मिनिस्टर KCR व मुकामी अवामी नुमाइंदों को के कविता साहिबा ने किया इज़हार तशक्कुर। MLCs के तौर पर के कविता व दामोदर रेड्डी हल्फ लेने पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा फिरमला प्रशांत रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए दी मुबारकबाद। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की रियासती वज़ीर बल्दियात व IT के टी रामर राव से मुलाकात, तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई के लिए की नुमाइंदगी। रियासती वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन के तौर पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी व मेंबर के तौर पर सुदम लक्ष्मी के साथ दीगर 6 मेंबरान मुंतखब होकर 1 साल मुकम्मल होने की बिना पर हैदराबाद की रियासती दफ्तर में जश्न का इनेकाद। कौमी शाहराओं से मुंसलिक खानगी कारोबारी इदारे व कॉम्प्लेक्स के अहाते में मरहलेवार पौधे लगाने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। कोविड पर काबू पाने, तिजारती व सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी जरूरी। मुत्तहदा जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 428 मुस्बित केस, अवामी लापरवाही लम्हा फिक्र। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।